Morning students. Last day we have discussed about respiration, respiratory organs, and today we are discussing about the mechanism of breathing and respiratory volumes and capacities. Okay, so mechanism of breathing here, breathing consists of two stages. One is inspiration, another is expiration. So inspiration means the process where the atmospheric air is drawn in, and expiration means the process where the alveolar air is released out. That is called the expiration. Now we are coming about the how this inspiration and expiration is going on, how the movement of air is going inside the lungs or from the lungs or from the alveoli as it is coming outside. So that is actually depending upon which one, the pressure gradient between the lungs and the atmosphere. So now how we are coming for the one by one. Suppose in case of we can say the inspiration, what is happening? Now diaphragm, actually both the condition, two muscles are working here. What are the muscles working here? Diaphragm and the external and internal intercostal muscle between the ribs. First one is the diaphragm, that is a specialized set of muscles, and external and internal intercostal muscles. ये दोनों muscles, both the muscles are working for, or the we can say the functioning for the mechanism of inspiration as well as the expiration. So ये intercostal muscles are present where? Between the ribs, and the diaphragm is present between the chest cavity and the abdominal cavity. We can see here, this is the diaphragm, and a diaphragm is present just down, and intercostal muscles are present between the ribs. These are the ribs. तो ribs के अंदर जो muscles, between the ribs the muscles are present, that is called intercostal muscles. So ये intercostal muscles and the diaphragm, ये दोनों ही क्या करते हैं ना, they are working for the inspiration as well as the expiration. तो हम आ जाते हैं कैसे होता है ये चीज. Now, inspiration is initiated by which one? Contraction of diaphragm, which increases the volume of thoracic chamber in the anterior posterior axis, and contraction of the external internal costal muscle. External intercostal muscles lifts up the ribs and the, we can say, sternum, causing an increase in the volume of the thoracic chamber. ये है mechanism in the dorsoventral axis. तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है ना, जब this one is diaphragm is contracted, no, it is coming down. तो जब भी देखो एरो भी नीचे की तरफ है, तो कंट्रैक्टेड जब होता है इट इज कमिंग डाउन, फुल्ली क्या हो जाता है, ये स्ट्रेच्ड आउट हो जाता है ना. और ये रिब्स जो है ना, द इंटरकॉस्टल मसल्स व्हिच आर प्रेजेंट बिटवीन द रिब्स, दे ऑल्सो विल कंट्रैक्ट एंड दे विल गोइंग अपवर्ड, है ना, दे रेज्ड अपवर्ड. ये देखो ये भी ऊपर की तरफ जा रहे और ये भी नीचे की तरफ आ रहे. सो व्हाट इज द नाउ द कंडीशन, द वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट कैविटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. The volume of the chest cavity will be increased because of the contraction of the diaphragm which is coming down, and the contraction of the intercostal muscles which is raised above or which is raised upward. So it will increase the cavity of the thoracic, that is called the volume of the thoracic cavity. So in that sense, जब volume increase हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्रेशर विल बी लेस. सो दिस कॉजेस ना, इन द थोरेसिक वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड एंड दिस कॉजेस अ सिमिलर इंक्रीज इन द पल्मोनरी वॉल्यूम. तो पल्मोनरी वॉल्यूम मतलब लंग्स की वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज, एंड इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर. दैट ओनली आई टोल्ड कि जब भी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो इसके अंदर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. दैट इज कॉल्ड इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर. इंट्रा का मतलब अंदर, है ना, पल्मोनरी मतलब लंग्स के अंदर जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब बाहर की प्रेशर से इस चेस्ट कैविटी के अंदर, लंग्स के अंदर प्रेशर कम हो जाएगा. देन द एयर विथ ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड एटमॉस्फेयर विल एंटर थ्रू द नेसल ट्रैक्ट इनटू द लंग्स टू बैलेंस द डिक्रीज प्रेशर, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर डिक्रीज हो गया, बाहर प्रेशर ज्यादा है. तो नाउ
the air will be coming from high pressure region to low pressure region. So that is causing the inspiration. That means in inspiration what is happening? Now outer oxygen rich air is entering through the which one? External nostril, nasal passage, internal nostril, then nasopharynx, then pharynx, then larynx, then trachea, then bronchi, then bronchiole and alveoli. This is called inspiration. Okay, so now it is coming the atmosphere which forces the air from outside to move into the lungs, है ना, and this is called inspiration. Relax, अब ये तो हो गया contraction वाली बात. जब relaxation होगा, है ना, both the muscle, what are the muscles coming here? One is diaphragm, another is intercostal muscles. Okay, so when the relaxation is going on diaphragm, when it is relaxing, it is coming upward, and when the ribs and sternum, means when the intercostal muscles are relaxing, they is coming in the downward direction, so it will decrease the volume of the chest cavity as well as the lungs. We can say intrapulmonary pressure will be now इंक्रीज, क्योंकि वॉल्यूम को आप क्या कर रहे हो? डिक्रीज कर रहे हो, तो प्रेशर क्या हो जाएगा? इंक्रीज. सो दैट इज इंक्रीज और दैट इज दिस इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर विल बी मोर देन द एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो डेफिनेटली टू बैलेंस इट, द एयर विल बी कमिंग फ्रॉम व्हेयर टू व्हेयर? ना alveoli to outside air and outside atmosphere, and that will be CO2 reached air will be coming from the lungs to the outside by the reverse nasal passage, you can say, means that is coming from the alveoli to the bronchiole, then bronchi. If we are coming from the this here, that is the alveoli, then bronchiole, then bronchi, then it is coming trachea, then it is coming the larynx, then it is coming the pharynx, and then it is nasopharynx, we can say, and then internal nostril and nasal passage and external nostril, है ना, इसके हिसाब से बाहर निकल जाएगा. तो that is the way, है ना, that is called expiration. So that is called expiration, है ना. So now we are coming from when the relaxation of diaphragm and the intercostal muscles क्या करता है ना, returns the diaphragm and sternum to their normal position. पहले diaphragm कहाँ था? ऊपर था, and ribs भी नीचे था, तो that's why they are coming to their original position. And this leads to the increase in an intrapulmonary pressure, क्योंकि जितना वॉल्यूम आप स्क्वीज कर रहे हो, तो स्क्वीज होने के कारण क्या हो जाएगा ना, इंटरनल जो प्रेशर दैट विल बी इंक्रीज्ड, एंड एज अ रिजल्ट व्हाट इज हैपनिंग ना, दैट इज स्लाइटली अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. बाहर की प्रेशर से अंदर की प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, एंड दैट कॉजेज द एक्सपल्शन ऑफ द एयर फ्रॉम द लंग्स. दैट इज कॉल्ड एक्सपिरेशन. We have the ability to increase the strength of the inspiration expiration with the help of the additional muscles in the abdomen. So healthy, and on an average, what is happening? Healthy human breathes 12 to 16 times per minute. The volume of air involved in breathing and movement can be estimated by using a spirometer. What is the actually device we are using there to measure the volume of air? That is spirometer. Okay, now we are coming some respiratory volumes and capacities. First we are discussing about the volumes here, and then we have to discuss about the capacity. So now we are first coming the tidal volume. What is represented by TV? Volume of air inspired or expired during a normal respiration. जब हम नॉर्मली रेस्पायर करते हैं, द अमाउंट ऑफ वॉल्यूम विच इज टेकिंग पार्ट इन इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, दैट इज कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम, and that is actually approximate. What is the amount there? 500 milliliter of a healthy human can inspire or expire approximately 6000 to 8000 milliliter of per minute, है ना. तो ये हो गया आपके 500 मिलीलीटर से आपके आप 60 से मतलब पर मिनट, मतलब 60 सेकेंड में आपको मिल जाएगा कितना? 5,000-6,000 to 8,000 मिलीलीटर. इट विल बी अप्रॉक्सीमेट एक्सपायरिंग और इंस्पायरिंग. नेक्स्ट वन वी आर कमिंग अबाउट द इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, है ना, दैट इज एक्चुअली IRV. सो वी कैन से हेयर, देखो एक वन टाइम में कितना हुआ? 500 मिलीलीटर, एंड इन 1 मिनट, है ना, हाउ मेनी टाइम्स ह्यूमन ब्रेथ्स इन और ब्रेथ आउट? 12 to 16. So if we multiply by 12 5 is 60 and 16 5 is 80, so that's why it is coming 6,000 to 8,000. Am I clear now? क्योंकि एक मिनट में 12 to 16 times it will breathe,
एंड एक एक ब्रीदिंग में कितना आ रहा है 500 मिलीलीटर इज द टाइडल वॉल्यूम. सो टोटल इज कमिंग हियर. एक मिनट में कितना अमाउंट ऑफ वॉल्यूम दे कैन रेस्पायर नॉर्मली, दैट इज 6000 to 8000 मिलीलीटर. इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रिजर्व का मतलब क्या है ना, एक्सेस अमाउंट में जो आप ले पाओगे, that is IRV. So additional volume of air a person can inspire by a forcible inspiration. ये हो गया आपके नॉर्मल इंस्पिरेशन की बात. यहाँ पे फोर्सिबल आप जब इंस्पिरेशन कर रहे हो तो क्या आप कितना ले सकते हो ना, 2500 to 3000 मिलीलीटर. ओके, दैट इज कॉल्ड IRV, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. Same way, expiratory reserve volume. So the additional volume of air a person can expire by a forcible expiration. मतलब forcibly आप जब expire कर रहे हो तो कितना amount you can, कितना वॉल्यूम यू कैन एक्सपायर देयर, इट इज 1000 to 1100 मिलीलीटर. अप्रॉक्सीमेटली हम 1500 तक ले सकते हैं. So this is about our actually approximation, that is 2500 to 3000 milliliters from IRV. For ERV it is 1000 to 1100 milliliter. Okay. Next one we are coming for residual volume. What is the residual volume? The volume of air remaining in the lungs after the forcible expiration. आप forcible expiration करने के बाद, मतलब जो excess amount भी आपने expire किए उसके बाद आपके lungs में जितना volume remaining रहेगा, that is called residual. This is about 1100 to 1200 milliliter. So these all are the volume. What are the volume we have discussed here? Tidal volume we have discussed, IRV, inspiratory reserve volume, ERV, expiratory reserve volume, and residual volume. ठीक है, these are the volume. Now we are coming for the capacity. What are the first one? Inspiratory capacity. What is inspiratory capacity? Now total volume of air a person can inspire after a normal expiration. आप normal expiration के बाद क्या लिख सकते हो? टाइडल वॉल्यूम तो ले ही रहे हो, उसके साथ इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एक्सेस भी, मतलब आप ले सकते हो, है ना, नॉर्मल एक्सप्रेशन के बाद. सो दैट इज कॉल्ड इंस्पिरेटरी कैपेसिटी. दैट इज TV plus means tidal volume plus inspiratory reserve volume. That is the capacity of yours. You can inspire that much, है ना, कि tidal volume तो ले ही सकते हो पर excess वाला भी ले सकते हो. That is called inspiratory capacity. Expiratory capacity किसको बोलते हैं ना, total volume of air a person can expire after normal inspiration. Normal inspiration के बाद आप क्या कर सकते हो ना, कितना amount of capacity आपके पास है, मतलब टाइडल वॉल्यूम तो आप कर ही सकते हो, फिर एक्सेस वाला भी आप कर सकते हो, इसलिए इसको बोलते हैं एक्सपिरेटरी कैपेसिटी. दैट इज टाइडल वॉल्यूम मीन्स 500 प्लस ईआरवी मतलब कितना आ रहा है आपके पास ना, दैट इज 2000 के आसपास, 2500 to 3000. तो ये हो गया टोटल आपकी एक्सपिरेटरी कैपेसिटी. और यहाँ पे भी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या है, टाइडल वॉल्यूम तो आपके पास है कितना, टाइडल वॉल्यूम आपके पास है 500 और IRV आपके पास आ जाएगा 2000 के आसपास, 2000 to 2500. तो नॉर्मली इट इज कमिंग 2500. और एक्सपिरेटरी कैपेसिटी में टाइटल वॉल्यूम आपके पास 500 आ रहे हैं और ERV कितना आ रहे ना, वी कैन से अबाउट 1000 to 1000, वही 1500 के आसपास. तो टोटल मिला के कितना आ रहे हैं ना, 2000 के आसपास इट इज कमिंग 2500. नाउ वी आर कमिंग फॉर द फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, है ना. रेसिडुअल वॉल्यूम तो आपको पता है कि आप फोर्सिबल एक्सप्रेशन के बाद जो आपके पास रहेगा, दैट इज एक्चुअली कमिंग रेसिडुअल वॉल्यूम. अभी नाउ कैपेसिटी कितने हो सकते हैं ना, फोर्सिबल आपने किया नहीं, नॉर्मल एक्सप्रेशन करो तो कितना कैपेसिटी आपके पास होगा ना, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स, इसको आफ्टर द नॉर्मल एक्सप्रेशन. नॉर्मल एक्सप्रेशन के बाद जितना अमाउंट आपके पास लंग्स में रह जाएगा, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड द फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी और FRC. दैट इंक्लूड्स व्हिच वन, रेसिडुअल वॉल्यूम किसको बोलते हैं ना, रेसिडुअल वॉल्यूम की आप फोर्सिबल एक्सप्रेशन के बाद जो रहेगा, लेकिन आपने नॉर्मल एक्सप्रेशन के बाद जो ERV मतलब एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, दैट विल आल्सो बी रिमेनिंग देयर. तो दोनों ही कैपेसिटी में आ जाएगा, मैं इतना तक आप कर सकते हो. तो ERV प्लस RV इज द फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी. तो आपके पास ERV कितना था ना, 1000 to 1500 तक था और RV कितना था, RV इज कमिंग अबाउट अगेन वही 1500 के आसपास. तो 3000 2500 to 3000 ये आ गया आपकी FRC. FRC का मतलब है ERV भी आएगा और RV भी आएगा, मतलब रेसिडुअल वॉल्यूम तो है ही, बट नॉर्मल एक्सप्रेशन के बाद आप कितना आपका रेसिडुअल में, मतलब कितना रेसिडुअल रहा,
दैट इज एक्चुअली कॉल्ड द कैपेसिटी। फिर वाइटल कैपेसिटी किसको बोलते हैं ना, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीद इन आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपिरेशन। फोर्स्ड एक्सपिरेशन के बाद कितना आप ले सकते हो ना, इसमें टाइडल वॉल्यूम भी रहेगा और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी रहेगा, क्योंकि वो भी फोर्स्ड एक्सप्रेशन किया आपने, तो ईआरवी भी रहेगा, टीवी भी रहेगा और आईआरवी भी रहेगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाइटल कैपेसिटी, है ना, कि एक फोर्सिबल एक्सप्रेशन के बाद जितना आप ले सकते हो, कितना ले सकते हो, ईआरवी भी ले सकते हो और आईआरवी भी ले सकते हो, और टाइडल वॉल्यूम तो है ही है उसके साथ, तो ये टोटल आ जाएगा वाइटल कैपेसिटी। तो टाइडल वॉल्यूम कितना है 5000, आईआरवी कितना है 2000, और ये कितना है ईआरवी कितना 1500, टोटल कितना आ गया 4000 मिलीलीटर के आसपास। टोटल लंग कैपेसिटी किसको बोलते हैं ना, जो वाइटल कैपेसिटी है उसके साथ आप रेसिडुअल वॉल्यूम को ऐड कर दो। वाइटल कैपेसिटी किसको बोलते हैं ना, टाइडल वॉल्यूम प्लस मतलब ईआरवी आईआरवी और उसके साथ आप रेसिडुअल वॉल्यूम ऐड कर दो। रेसिडुअल वॉल्यूम मतलब आप फोर्सिबल एक्सप्रेशन के बाद जो आपके लंग्स में रिमेनिंग रह जाएगा। So total volume of air accommodate in the lungs at the end of the forced inspiration. फोर्स इंस्पिरेशन के बाद जितना रहेगा, फोर्स इंस्पिरेशन में आप टाइडल वॉल्यूम भी आएगा, आईआरवी भी आएगा, ईआरवी भी आएगा, और साथ ही साथ जो रेसिडुअल वॉल्यूम है वो भी आएगा। तो डेफिनेटली दैट इज द टोटल वॉल्यूम, दैट टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अकोमोडेट इन द लंग्स। लंग्स में क्या क्या रहेगा ना, लंग्स के अंदर उसके साथ आरबी तो ऑलरेडी है, उसके बाद आप फोर्सिबल एक्सपिरेशन में क्या कर लिया ना, फोर्सिबल इंस्पिरेशन में क्या कर दिया ना, वी कैन से द आईआरवी भी आपने फोर्सिबल लिए और ईआरवी भी लिए, आईआरवी भी है ना, ईआरवी भी है, और यू कैन से दैट टाइडल वॉल्यूम तो है ही है। तो टोटल लंग्स की जो कैपेसिटी है दैट इज द टुगेदर ऑफ दिस वन। तो रेसिडुअल वॉल्यूम कितने आपके पास है ना, वही है 1500 के आसपास। आईआरवी कितना है आपके पास 2000 1500 के आसपास यू कैन से, एंड यू कैन से ईआरवी कितना है ना, वही 1500, ये 500, तो लगभग कितना आ जाएगा आपके पास ना, ये हो गया 3000 और 5500 और 500, मतलब वही 5000 to 6000 के आसपास आपके पास आ जाएगा कौन सा, टोटल लंग कैपेसिटी। Now we are coming for the exchange of gas. तो एक्चुअली एक्सचेंज ऑफ गैस कहाँ होता है ना, एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑल्सो ऑकर बिटवीन द, कहाँ पे होता है ना, एक तो एल्वियोलाई में होता है। एल्वियोलाई आर द प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैस, जहाँ पे ऑक्सीजन जो मतलब एल्वियोलाई में है दैट इज कमिंग टू द ब्लड कैपिलरीज, और ब्लड कैपिलरीज की जो CO2 है दैट इज कमिंग टू द वी कैन से द एल्वियोलाई। So that is the primary site of exchange of gases. Exchange of gases also occur where in the blood and the tissues. Oxygen and CO2 exchange in this site of simple diffusion, mainly based on which one, pressure and concentration. Solubility of the gases as well as the thickness of the membranes involved in the diffusion are also important factors that can affect the diffusion. देखो कौन कौन सा है ना, thickness of the membrane and solubility of the gases. Okay, so now we are coming to the point here कि प्रेशर कितना कितना, एक सीधी सी आपके पास प्रेशर है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन किसको बोलते हैं ना, इंडिविजुअल टू कंट्रीब्यूशन। सपोज अ मिक्सचर ऑफ गैस है आपके पास, है ना, मिक्सचर ऑफ गैस है जहाँ पे ऑक्सीजन भी है CO2 भी है, तो यहाँ पे जो इंडिविजुअल की जो प्रेशर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, PO2, है ना, टोटल की जो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन, तो इसको बोलते हैं PO2, और यहाँ पे क्या बोलेंगे PCO2। अभी PO2 और PCO2 देखो, मैंने ये चीज बोला कि दो प्लेस है जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सकता है। कहाँ पे हो सकता है, देखो एक तो एल्वियोलाई के साथ हो सकता है, एक टिश्यूज के साथ हो सकता है, टिश्यू विद द ब्लड कैपिलरीज, एल्वियोलाई विद द ब्लड कैपिलरीज। ये दोनों कंडीशन में क्या हो जाएगा, एक्सचेंज होगा, बट एक्सचेंज इज डिपेंडिंग अपन व्हिच वन, पार्शियल प्रेशर एज वेल एज द वी कैन से द थिकनेस, है ना, कैसे द ब्लड कैपिलरीज या मेम्ब्रेन की जो थिकनेस उसके ऊपर डिपेंड होता है। अभी यहाँ पे एक बहुत अच्छे से टेबल देके रखा है आपके पास, यहाँ पे देखो रेस्पिरेटरी गैस क्या है, ऑक्सीजन एंड CO2, एटमॉस्फेयर में इसकी पार्शियल प्रेशर क्या है, सबकी प्रेशर आपको देके रखा है ना, तो यहाँ पे देखो 159 और 0.3 एटमॉस्फेयर में ये है। जब एल्वियोलाई में एंटर किया तो ऑक्सीजन का कितना हुआ 104 और 40, ठीक है, CO2 आ गए 40। जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसमें क्या है 40 एंड 45, 40 किसका है ऑक्सीजन का, और CO2 कितना है 45। ब्लड जब ऑक्सीजनेटेड हो तो क्या हो जाएगा 95 एंड 95 किसके लिए है, ऑक्सीजन के लिए, और 40 कितने हैं CO2 के लिए। एंड टिश्यूज में जो आएगा 40 किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए, और 45 किसका है ना, CO2 के लिए, क्योंकि टिश्यूज में ऑलरेडी रेस्पिरेशन इज गोइंग ऑन, तो रेस्पिरेशन की वजह से क्या हो जाएगा CO2 प्रोडक्शन हो जाएगा।
ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे जो पॉइंट आपको दे के रखा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज है कि एल्वियोलाई जो एयर है उसमें कितना है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 104, CO2 कितना है 40, और जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है ना, डीऑक्सीनेटेड ब्लड आपके पास है, तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड में कितना है ना, PO2 है 40, है ना, PO2 कितना है, PO2 है 40 और CO2 कितना है ना 45, ठीक है। तो CO2 यहाँ पे 45 है, यहाँ पे क्या है 40 है, तो हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर में आ जाएगा। तो CO2 कहाँ पे एंटर होगा ना एल्वियोलाई, और ऑक्सीजन कितना 104, यहाँ पे कितना है 40, तो 104 टू एंटर कहाँ पे, ऑक्सीजन भी एंटरिंग इन द कैपिलरीज। तो नाउ जो ब्लड डीऑक्सीनेटेड था वो किस में कन्वर्ट हो गया, ऑक्सीनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो गया। अब ये समझ में आ गया पार्शियल प्रेशर जहाँ पे ज्यादा है, फ्रॉम देयर पर ऑक्सीजन विल बी कमिंग, मतलब पार्शियल प्रेशर जहाँ पे कम है द गैस विल बी एंटरिंग देयर। अभी यहाँ पे क्या हो गया ना, PO2 कितना है, ये जो ऑक्सीनेटेड ब्लड है ना इसमें PO2 कितना है 95 मिलीमीटर Hg और PCO2 कितना है 40 मिलीमीटर Hg। व्हेयर एज इन केस ऑफ टिश्यूज में क्या है ना, PO2 है 40 मिलीमीटर Hg और PCO2 कितना 45 मिलीमीटर Hg। तो PO2 है 40 और P95 यहाँ पे है 95, तो ऑक्सीजन कहाँ पे एंटर होगा ना, जहाँ पे हायर पार्शियल प्रेशर टू लोअर पार्शियल प्रेशर, और CO2 कहाँ पे होगा ना हायर पार्शियल प्रेशर टू लोअर पर, तो यहाँ पे हायर है 45 है, यहाँ पे 40 है, तो डेफिनेटली इट विल बी एंटरिंग हियर। तो नाउ ऑक्सीनेटेड ब्लड ऑक्सीजन दे दिया और CO2 रिच ब्लड में कन्वर्ट हो गया। तो CO2 में अभी क्या है, फिर से यहाँ पे वही है कि एक्सचेंज कहाँ पे होगा ना, यहाँ पे PCO2 45 हो गया, PO2 40 हो गया, तो डेफिनेटली यहाँ पे ये एक्सचेंज हो जाएगा किसके साथ, एल्वियोलाई एयर के साथ। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग द एक्सचेंज ऑफ गैस इज ऑकरिंग व्हेयर इन द एल्वियोलाई एंड द ब्लड कैपिलरीज और द ब्लड कैपिलरीज एंड द टिश्यूज, but it depends upon which one, it depends upon the partial pressure of CO2 and oxygen। जहां पे पार्शियल प्रेशर जिसकी ज्यादा हो उससे कहां पे जाएगा, जहां पे कम हो, ठीक है। दैट्स व्हाई द एक्सचेंज इज ऑकरिंग। तो एल्वियोलाई से ऑक्सीजन एंटर हो रहे ब्लड कैपिलरीज में और CO2 इज एंटरिंग इन द एल्वियोलाई एयर, सो एल्वियोलाई एयर बिकम नाउ डीऑक्सीनेटेड, ठीक है, CO2 रिस्ट हो गया। अभी नाउ द कैपिलरीज व्हिच इज एक्चुअली ऑक्सीनेटेड दे विल बिकम डीऑक्सीनेटेड बाय एक्सचेंजिंग द ऑक्सीजन इनटू द टिश्यू। ऑक्सीजन इस टिश्यू को दे दिया, टिश्यू से CO2 ले लिया, तो डेफिनेटली खुद क्या कन्वर्ट हो गया ना, दे आर कन्वर्टिंग इनटू CO2 रिच्ड ब्लड। One more condition is coming, that is the diffusion membrane is made up of 3 major layers। देखो यहाँ पे layers कितने कितने हैं, 3 major layers है। एक तो है थीन स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलर, इसको जो बोलते हैं थीन स्क्वामस है, और ये है आपकी कैपिलरीज की जो है दैट इज एक्चुअली एल्वियोलर कैपिलरीज एंडोथेलियम ऑफ द एल्वियोलर कैपिलरीज। ये कैपिलरीज का भी थीन मेम्ब्रेन है, और इन बिटवीन देखो येलो कलर की जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ये तीनों ही क्या है, थीन लेयर है, टोटल थिकनेस मतलब 1 मिलीमीटर से भी कम है ना। तो देयरफॉर ऑल द फैक्टर्स मतलब बहुत ही थीन है, जहाँ पे एक्सचेंज हो रहे हैं एल्वियोलाई और ब्लड कैपिलरीज या ब्लड कैपिलरीज या सेल मेम्ब्रेन जो भी है, ऑल आर वेरी थीन है। सो ऑल द कंडीशंस आर फुलफिल्ड है। एक तो पार्शियल प्रेशर की जो कंडीशन है वो भी फुलफिल कर रहे टू एक्सचेंज द गैसेस, एज वेल एज दे आर वी कैन से द मेम्ब्रेन थिकनेस इज ऑल्सो satisfying for exchanging the gases, okay।